तेरे पर्सपेक्टिव से हेल्थ फिटनेस में नॉट जस्ट बी अबाउट फिजिकल फिटनेस, राइट? You've experimented with food. थोड़ा सा I want to know about those fad diets. I want to know about keto. I want to know about low carb. कि तूने try किया, did it work and was it sustainable? Wow, such a good question. I think it goes back to your thing about process. We have to keep tweaking a process also, जिससे कि वो fresh रहे, जिससे हमारे मन में हमेशा एक excitement रहे day to day to actually approach fitness. Fads तो आते जाते रहते हैं. You know, there's sometimes आप like वो Dalgona coffee pandemic में आ गया था, सबने फोटो लगा दी, and then where it went, who had it after that, nobody knows. So fads are a very risky thing also because a lot of times they're not backed by science. आप करने लग जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि oh no, this is not good for me. मैं इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ, but I don't have any of the micronutrients that I need. I'm getting rid of so many different things in my diet and not really balancing it out with the other aspects. So that is quite a problem with fads, I feel. So fads, though, I am generally a step away from fads. I try not to get into it. But there are things like low carb diet मैंने try किया है US में, and that worked for me, frankly speaking. In fact, US नहीं, college की भी कहानी है. Maybe I'll take it from there. कि ये कैसे शुरू हुआ मेरा experimentation. So I, like I was always into sports, cricket, football. मैं खेलता था पहले भी. Right. फिर आया 11th-12th जिसमें कि इंसान के ऊपर डाल देते हैं आईआईटी का बोझ या कहीं जाओ आप पढ़ो लिखो एग्जाम देने का कर देते हैं. And literally my body transformed over 2 years into a life that I did not really see coming कि ऐसा भी हो सकता है. And now obviously there was a bit about weight, weight बढ़ गया था काफी. 34 की पैंट ले रहा था मैं and t-shirt I was having the same size as my father who's taller and bigger than me. So very weird time. I think there was a mental aspect to it also which I didn't understand at that point. Maybe I was borderline depressed. I don't know. I don't want to really self-diagnose though at this. बट उसके बाद मैं कॉलेज गया लाइक यू. वहाँ पे बहुत फैट चल रहा था कि 6 पैक करना है, टाइट टी शर्ट पहननी है, लोगों को दिखाना है कि हाउ कूल यू आर. और थोड़ा प्रेशर भी था बैंगलोर में कि दिल्ली का लड़का है, इसमें तो बहुत स्टाइल होगा पहले से. तो उन सब प्रेशर में थोड़ा बहुत मैं भी इन्फ्लुएंस होने लग गया. फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ नहीं, उसमें था थोड़ा कि कॉलेज आ गए हैं, ड्रिंकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐश मारेंगे. बट एट सम पॉइंट आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई वांट. This is not the level of fitness that I want. This is not how I want to wake up every day. This is not how I feel like going from day to day. तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया अपना एक्सरसाइज और फिटनेस से जो मेरा वास्ता रहा है इतने सालों में. एंड लाइक यू सेड कंसिस्टेंट ट्रेनिंग का मैंने बहुत कोशिश किया फ्रॉम दैट पॉइंट. उसमें मैंने फर्स्ट टाइम किया था यार लो कार्ब का शुरू. आई हैड गिवन अप ऑन राइस कंप्लीटली एट दैट पॉइंट क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडिया था, राइस काफी चलता था. सो आई गिव अप ऑन दैट. आई डिड नॉट हैव इट फॉर अ ईयर. Then I left off all sweets, sugar, जितना भी डाइट में एक्स्ट्रा डालते हैं मैंने सारा छोड़ दिया था. This went on for a year and I saw a lot of gains because of that. I saw a lot of weight loss. Obviously, like you said, कि एक मजदूर वाला phase भी आ गया था because you overdo a lot of these things. तो वहाँ मैंने शुरू किया. Then I realized that your diet can have a positive influence on your health, on your the way you want your body to look and feel. तो उधर से मैंने शुरू किया. फिर मैं जब यूएस गया तो आए वहाँ पे द होल प्रोटीन थिंग, ड्रिंक्स वहाँ पे ज्यादा ही होता है इंडिया से. इनफैक्ट ऑन अ वीकली बेसिस यू प्रॉब्ली एंड अप हैविंग अ लॉट मोर पर कैपिटा ऑफ मीट एंड अल्कोहल. तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे बॉडी पे आपको दिखने लग गया कि ये चीजें चढ़ रही हैं जिसको कहते हैं इट वाज हैविंग एन इफेक्ट ऑन यू. यू फील स्लगिश, स्लो हो रहे थे आप अपने लाइफ में. So I started this again. I let go of all the white rice that I was having, all kinds of bread मैंने छोड़ दिया, beer छोड़ दिया, and I was looking at only lean meats, looking at brown rice, looking at a lot of steamed vegetables. I read a couple of very good books at that point also about diet, and उससे मैंने ये realize किया अगर आप पूछो तो fad नहीं है. You have to look at wholesome foods. You have to look at जितना कम process आप कर सको food को, जितना natural form पे खाओ. And make it interesting. I used to cook my own food over there, right? तो broccoli, spinach से भी आप बहुत interesting चीजें कर सकते हो. कभी कभी because you have it at the same mess, canteen, घर पे भी, you think यार उसे एक negative feeling हो जाती है कि यार ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगे, मेथी नहीं मुझे पसंद है. लेकिन मेथी भी आपके लिए important है. You have to figure out how best you can have it. So that's my philosophy to food, that you have to have healthy, wholesome,
आई डू ट्राई टू कीप इट ऑन द वेजिटेरियन साइड. मेरे को थोड़ा सा वीक में 4 से 5 दिन वेजिटेरियन फुल ऑन मेरे को अच्छा लगता है. And on the other days I have non-veg. I don't go crazy. I have less red meat also. थोड़ा बहुत मेरे को टेस्ट पसंद है तो मैं खाता हूँ, but I'm not. I don't crave it like a lot of people crave it. And that's been my food journey. Not too many fads सोच के, but थोड़े experiments along the way. So the fads kind of benefited you initially, but you were not able to sustain, या तूने consciously छोड़ दिया? What was the thing? वेरी गुड क्वेश्चन. एक तो देखो शुरू में तो बहुत हुआ इफेक्ट हुआ उससे, लाइक आई सेड काफी विजिबल इफेक्ट हुआ. ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज इनटू इट. मैं सुबह रनिंग भी करने जाता था एंड ऑल दैट. जैसे लाइक यू सेड शुरू 10 लोगों ने किया, 1 महीने बाद 3 लोग कर रहे थे, 3 महीने बाद कोई नहीं कर रहा था इंक्लूडिंग मी. मैं भी नहीं जा रहा था उसके बाद तो रनिंग करने से. सो प्रोसेस इम्पोर्टेंट. मैंने छोड़ा क्यों? आई थिंक आई हैड गॉट द लेवल ऑफ बॉडी sort of fat and movement जो मेरे को चाहिए था. Then I started building up on muscle mass. उस समय मेरे को obviously आप कैंटीन में मेस में खाते हो तो you need all the food you can get, all the nutrition that you can get from there. तो उसमें मैंने राइस वापस शुरू कर दिया. स्वीट्स तो मैंने बहुत एक्चुअली सालों तक नहीं खाया. वेरी ओकेजनली कुछ आइसक्रीम या कुछ केक अपने बर्थडे पे खा लिया. वो तो मैं अभी भी कम ही ट्राई करता हूँ स्वीट्स खाने का. So that is how it went away. It didn't go away from any sort of design. वो हो गया, मतलब अपना जब अचीव कर लिया तो फिर उस समय के लिए उसे छोड़ दिया. राइट. और लेकिन some of the aspects which you had tried out उस टाइम पे are still continuing in your life. For example, तो स्वीट्स कम खाता है, राइट? तो प्रोसेस्ड कम खाता है, still avoid processed, right? I think कोई भी डाइट को या कोई भी ट्रेंड को या कोई भी फिटनेस चॉइस को, आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इवन इफ यू लीव इट, बाद में उससे कुछ पॉजिटिव चीजें उठा सकते हैं हम लोग, राइट? जो कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. आपको वही देखना है व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट, एट द एंड ऑफ द डे. एंड जो आपके लिए जनरली वर्क करता है एंड विच इज गुड, साइंटिफिकली प्रूवन टू बी गुड, आप उसको रखिए ना. मतलब ये नहीं है कि आप डेली आप करें कि मैं राइस खाऊंगा ही नहीं. मेरे को राइस का टेस्ट पसंद है, मैं खाता हूँ. संडे आफ्टरनून आई लाइक हैविंग राइस, right? But do keep those things in mind. Like vegetarian food is good for you. Inherently दिखाया गया है कि your body reacts better to vegetarian food. Even if you're having meat, you should put vegetables on the side. तो आप ये सब क्यों नहीं करेंगे? Why would you be stuck on some idea कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, your body needs it. Might as well give it. A very good point. I think fitness का is a very big role जो nutrition play करता है. 70% nutrition and 30% exercise, right? तो अगर आपको सिर्फ weight loss का एक है, तो I think people should focus on the exercise aspect, which is there. But food पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता है. मतलब I've seen कि मैं कम खा लूंगा लेकिन मैं कचरा खाना चाहता हूँ. मतलब मैं प्रोसेस्ड ही खाऊंगा लेकिन मैं कम खाऊंगा. ठीक है, मैं केक खा के कर लूंगा. ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पेस्ट्री खा लूंगा. मतलब मुझे भी अपना याद है कि मैं डिनर में एक बार सिर्फ डेजर्ट्स खाए थे ड्यूरिंग MBA. एक दिन सिर्फ डेजर्ट खाए थे ब्रो मैंने. I realized अब करोगे 10 साल बाद. हाँ I was like, gone. Will you ever do it? No, I will never do it again, bro. मतलब रसगुल्ला, रसमलाई, छेने के रसगुल्ले जो आते हैं, गुलाब जामुन वगैरह, सब 3-4 चीजें एक दोस्त के साथ मैंने पूरा खा लिया था डिनर में, और कुछ नहीं खाया गया था. I was like, शुगर रश हो गया था मुझे. So it was a crazy feeling, और जो मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता. मतलब कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करके समझ में आती है, मतलब ट्राई करके समझ में आती है, बट समझ में आनी चाहिए. आपको समझ आती है. समझ में आना जरूरी है, ऑब्जर्व करके समझना जरूरी है. कंटिन्यू करना उस चीज से अच्छी चीज नहीं है. तो